today's session also will be manipulating the NumPy arrays. Okay, in today's session as well, we will be manipulating the NumPy arrays. So, slicing and indexing के regarding a very small concept is remaining. So let's firstly understand the concept, and before that, why is this notebook not got executed? So see, could not assign the tuple of length 3 to this structure. Because of this error, things were unable to work. So मैं just इसे comment out कर रहा हूँ and then restarting the kernel to execute my entire notebook. So see, everything is done now. So till now we were discussing about the NumPy arrays and all, and still we are going to have the discussion about the NumPy arrays also. So indexing में concept था that was masking. वो मैं miss कर गया था बीच में. So I need to tell you about that concept. Masking in NumPy arrays. Okay. So exactly NumPy arrays में masking होती क्या है? और मैं अगर बेसिकली बताऊं तो पाइथन के हमारे जितने भी ऑपरेटर्स थे ना, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, चाहे वो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उनकी बात कर लो, या कोई भी पाइथन के ऑपरेटर्स की बात कर लो, ऑल दोज ऑपरेटर्स आर ओवररिडन टू वर्क विद द NumPy array. लेट्स से हमारे पास एक NumPy array अवेलेबल है. दिस इज द NumPy array दैट वी हैव, एंड आई सेड कि a ग्रेटर देन 10. सो a हमारे को एक और array रिटर्न करेगा, एक और NumPy array रिटर्न करेगा, जिस NumPy array के अंदर जहां जहां वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती थी वहां वहां हमारे को ट्रू मिलेगा, जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है वहां वहां हमारे को फॉल्स मिलेगा. तो जब भी आप NumPy array यूज करते हो ना, यू यूज NumPy array कि यू वांट टू सी ऑल दोज एरेज या ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव दिस वैल्यू, यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो आप जो यहाँ पर ये लिखते हो एग्जैक्टली, लेट्स से आपने a equals to a, so you want to access the elements of the a where a is greater than 10. जहाँ पर भी एलिमेंट की वैल्यू आपकी greater than 10 होती है, तो ऐसे सिनेरियो में आप एक्चुअली एक मास्किंग ऑब्जेक्ट हैंडओवर कर रहे हो. जिस जिस जगह पर ट्रू लिखा हुआ है ऑल दोज वैल्यू विल बी एक्सेस्ड, जिस जिस जगह पे फॉल्स लिखा हुआ है दोज वैल्यू विल नॉट गेट एक्सेस्ड. सो दैट्स हाउ द मास्किंग इज परफॉर्म्ड. इस तरीके से आपको यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो एक्सेस होकर मिल रहे हैं. अगर आप चाहो तो अपना खुद का भी एक मास्किंग ऑब्जेक्ट बनाकर दे सकते हो, आप अपना खुद का एक NumPy array बनाकर दे दो ऑफ ट्रूज एंड फॉल्स, और ये आपके लिए उस पे भी ग्रेट वर्क करेगा, ये आपके लिए उस सिचुएशन पे भी बिल्कुल ग्रेट वर्क करेगा. ओके, सो सी, ओके, we were saying yes. Okay, now let's again get back to the list of masking, and now let's talk about the concatenation of the two NumPy arrays. How you can concatenate the two NumPy arrays. लेट्स से अगर हमारे पास एक ls अवेलेबल है, सो वेट फॉर अ व्हाइल, concatenation of NumPy arrays. If you remember guys, मैंने आपको पाइथन में बताया था that Python's plus operator is overridden to work with the collections like object. आपके लिए जो पाइथन का हमारा प्लस ऑपरेटर था that is overridden for working with the collection like object. Suppose हमारे पास एक ls है and that ls is a list of range of let's say 10, and then we have again ls, another ls we do है, और इस केस में हमारे पास जो other ls अवेलेबल है, हमारे पास list of range of let's say again 10. then what I said ls1 plus ls, यानी कि दोनों ls को मैंने जोड़ा, तो exactly we found the new list which is the concatenation version of the both the list. But in NumPy exactly it is not like that. आपके लिए NumPy के अंदर इस तरीके से चीजें वर्क नहीं करती. Let's say we have a1, that is the NumPy array np.arange function I used to create the array arange. I said this is the array 1, and then we have the a2 available, and this is equals to np.arange, and then I again provided the value 10. So these are the arrays we have. Now what I did, a1 plus a2, I tried to perform the addition operation. But what are we getting? We are getting the element wise addition. It is not concatenating this stuff. So as I told you guys कि Python के जितने भी operators थे, all Python operators are overridden in NumPy. सारे के सारे जो ऑपरेटर्स थे हमारे वो पाइथन के NumPy के अंदर ओवररिडन है.
तो जो फंक्शनलिटी आपकी पाइथन के कलेक्शन के साथ मिलती थी वो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। लिस्ट का कंकेटिनेशन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजीली यहीं पर से हो जाएगा। सो सी लिस्ट का जो हमारा कंकेटिनेशन है तो वो तो इस तरीके से ही हो जाएगा, लिस्ट कंकेटिनेशन। लेकिन एग्जैक्टली numpy arrays को अगर आपको कंकेटिनेट करना है देन यू विल हैव टू यूज द यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ numpy। अब हम यूनिवर्सल फंक्शंस यूज करेंगे ऑफ द numpy के यूनिवर्सल फंक्शंस को हम यूज करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास दो numpy array अवेलेबल है, दोनों वन डायमेंशनल numpy array है हमारे, दोनों के दोनों 1D arrays है। तो मैंने यहाँ पर बोला a1 डॉट, I said a1 डॉट एंड देन नॉट एग्जैक्टली a1 डॉट, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर एक numpy नया array मेरे को बन के मिलेगा। सो मैंने कौन array बोल दिया, हमारा जो होगा वो कौन array होगा। It is gonna be equals to numpy dot concatenate is the universal function of the numpy. Concatenate is the universal function of the numpy. Here you will have to hand over two things. पहली thing जो होगी वो होगी collection of arrays. First thing is what? Collection of numpy arrays to be concatenated with the each other. यहाँ पर आप कितने भी numpy arrays को hand over कर सकते हो। Let's say we have two numpy arrays, so a1 we have, a2 we have various numpy arrays. If we do have various numpy arrays available, then we can perform this kind of operations. So see, a1 we have, a2 we have, and then just press the shift enter. So wait for a while. Now con array, if you try to access con array, if you ever try to access, you will find the concatenated version of both the arrays. This was the working with the concatenate function with the 1D numpy array. ये एक वन डायमेंशनल numpy array था, इसके साथ तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, बहुत सिंपल बिहेव करता है। ये जो अभी हमने concatenate करा है ये हमने सिर्फ with 1D array के साथ करा है। वन डायमेंशनल array के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ collection of arrays hand over करना है। But if you do have various other arrays available as well, so let's say we have a x is equals to what? Numpy dot, np dot a range. Let's say we have a collection of 25 elements. Then I said reshape this stuff. So I said reshape this stuff out into 5 cross 5 matrix, and that's it. हमारे पास एक x है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक y बना दिया। लेट्स से इट इज इक्वल्स टू numpy डॉट linspace, और मैंने बोल दिया कि 1 से 30 के बीच में आई वांट 25 टर्म्स, और उन 25 टर्म को मैंने रीशेप करके अगेन इसी तरीके से कुछ और उसमें बना दिया। या आपके पास और कोई एरे पड़ा हुआ है आप उनको जोड़ना चाहते हो या नॉट, उसके अकॉर्डिंगली तो मैंने इसको अगेन रीशेप करा और इसको भी 5 क्रॉस 5 कर दिया। एंड देन हमारे पास ये दोनों एरेज अवेलेबल है, मैंने x, y को प्रिंट भी करा कर आपको दिखा दिया। सो ये हमारा पहला numpy array, दिस इज द numpy array that we have, and this is the second numpy array. If you want to perform the concatenation on the multi-dimensional numpy array, then numpy concatenate function needs some other arguments as well. So I said concatenate, I want to perform the concatenation operation. In there I provided the collection of the arrays, they are x and y arrays, and if I do something like this, if you press shift tab over here, you will see the default axis is set to what? Default axis is set to 0. Default axis, since it is set to 0, so it means the concatenation will happen row wise. Okay, the concatenation will happen row wise. It means that exactly. So you can see आपका ये numpy array था, एक ये numpy array था और एक ये numpy array था। जब हमने concatenation operation perform करा तो हमारे लिए यहाँ पर रो वाइज यानी कि जो दूसरा एरे था उसकी सारी रोज को यहाँ पर हमारे लिए कंकेटिनेट करवा दिया। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस इज सेट टू 0, और एग्जैक्टली एक्सेस पे आप बता सकते हो कि आप किस एक्सेस पे अपनी थिंग्स को कंकेटिनेट कराना चाहते हो। सो एक्सेस टेल्स द कंकेटिनेट फंक्शन arrays to be concatenated रो वाइज और कॉलम वाइज, कि कॉलम वाइज हमारे को कंकेटिनेट कराना है और रो वाइज कंकेटिनेट कराना है। इफ एक्सिस इज 0, अगर हमारा एक्सिस जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है, सो अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब रहेगा कि आप रो 0 जो हमारा एक्सिस है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा एक्सिस जो है आप यहाँ पर
अगर 1 लिखा हुआ देते हो सो इट मींस कॉलम्स। सो आप चाहो तो एक्सेस 0 की जगह कॉलम्स या रोज भी लिखा हुआ दे सकते हो। अगर आप चाहो तो एक्सेस 0 और 1 की जगह कॉलम्स और रोज भी लिखा हुआ दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू है हमारी, डिफॉल्ट एक्सेस इज सेट टू 0। जो हमारा डिफॉल्ट एक्सेस है इट इज सेट टू 0। सपोज अब ये तो हमारे लिए जो कंकेटिनेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ 0 एक्सेस, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला np डॉट concatenate again, see concatenate again, and in there I have provided a collection of arrays that they are x and y arrays, and then I said कि x and y arrays को हमारा find and then axis। अब axis को मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी, let's say मैंने यहाँ पर इसे 1 लो, axis is now 1। If you now see the result, you can see your stuff is concatenated column wise, not row wise this time, it is concatenated column wise। You can say आपके लिए जो एलिमेंट्स आपको देखने में मिल रही है इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको परफेक्ट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्क्रीन पे एडजस्ट होने के चक्कर में एक ही रो को इसने 2 लाइंस में स्प्लिट कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली एक ही ये हमारी एक पूरी सिंगल रो है, ये हमारी सिंगल रो है, ये अनदर सिंगल रो है हमारी। स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए इसने ऐसा करा है सिर्फ और सिर्फ। अब अगर आप देखोगे तो पहले चीजें हमारी जो कॉलम वाइज हो रही थी, जो कॉलम वाइज ऐड हो रही थी, अब वो हमारी रो वाइज ऐड, वो सॉरी रो वाइज ऐड हो रही थी जो पहले, वो हमारी कॉलम वाइज ऐड हो रही थी। You can also provide the axes as columns कि आप कॉलम्स के बेसिस पे जोड़ना चाहते हो। सो स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, ओके, सो इट इज नॉट टेकिंग इट, लेकिन वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ द numpy टेक्स द अदर आर्गुमेंट, लाइक वो numpy के एक्सेस के तौर पे आपसे कॉलम भी ले लेते हैं और 0 1 भी ले लेते हैं, तो वो भी आपको अलाउ करते हैं। ओके, see now I think you are getting confused। why you are getting confused? see, जब हम नॉर्मल concatenate operation perform करते हैं then default axis is set to what 0, means the concatenation operation will be performed row wise। in this collection of the arrays I have provided x first and y later। so obviously बात है x वाला जो array होगा उसकी सारी rows पहले होंगी, y वाला जो array होगा उसकी सारी rows जो होंगी वो हमारी बाद में होंगी। एक्स वाले जो भी हमारा एरे है उसकी रोज पहले होंगी, बाकी वाले की बाद में होंगी, क्योंकि इसमें एक्सेस हमने दिया नहीं और डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो हमारा 0 है। दिस इज द रीजन। इसके बाद आगे चल के हमने क्या करा, यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया कि एक्सेस इज व्हाट, एक्सेस इज 1। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि साइज तो दोनों का सेम दिख रहा है, लेकिन इफ यू सी प्रॉपर्ली यहाँ पर ये एक इकलौती रो थी, सिंगल लाइन के अंदर हमारी पूरी रो है, फिर अगली लाइन के अंदर अगली रो है, उससे अगली के अंदर अगली रो है, लेकिन ओवर हियर ये जो है हमारी ये एंटायर रो है, ये 2 लाइन में हमारी एक रो रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि वी डोंट हैव द इनफ स्पेस ऑन टू आवर स्क्रीन टू विजुअलाइज दिस एंटायर थिंग। हमारे पास क्योंकि इनफ स्पेस नहीं था, इसीलिए इसने यहाँ पर क्या करा है, इसीलिए हमारे लिए इसने हमारे स्टफ को इस तरीके से रीएडजस्ट करके दिखाया है। ओके, दिस इज द ओनली रीजन इसने हमारे स्टफ को इस तरीके से रीअरेंज करके दिखाया है। नाउ बट यू विल फाइंड कि हमारे एक्स कॉलम की सारी रोज को, एक्स कॉलम के सारे मतलब एक्स एरे के सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड देन 4 है। ये 5 कॉलम हमारे किसके हैं, एक्स कॉलम के, ये 5 एक्स एरे के है। इसके बाद हमारे पास 1 पॉइंट है, उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग है, देन वी हैव 3 पॉइंट समथिंग, देन हम 4 पॉइंट समथिंग एंड देन वी हैव 5 पॉइंट समथिंग। ये हमारे वाई एरे के कंपोनेंट्स हैं और ये सारे कंपोनेंट्स एक ही एरे के अंदर है। इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, लेट्स से मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। मैंने टेम्प के अंदर इसे असाइन करा दिया एंड देन आई शोड द टेम्प वेरिएबल, और फिर मैंने आपको यहाँ पर इसकी एक सिंगल रो एक्सेस करके दिखानी है। तो मैंने बोल दिया कि गेट मी एट 0 थ्रू। सो व्हाट आर वी गेटिंग, सी सिंगल रो में क्या क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4, 1 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 पॉइंट समथिंग। So actually in Python we have, yeah, in NumPy we have various functions available to perform the same kind of operation. We have various functions available to perform the same kind of operations. Now see, same another function we have that is called the stack function. So basically a NumPy stack function much behaves like the concatenate function of the NumPy, but स्टैक के अंदर आप यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दोगे आपके लिए स्टैक करे जाएंगे, 1 above 1, 1 above 1, 1 above 1 है। वर्टिकल स्टैकिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, हमारे पास 2 तरीके की स्टैकिंग अवेलेबल है। सी दिस इज आवर एक्स एरे, ये हमारा एक्स एरे अवेलेबल है, एंड दिस इज आवर वाई एरे। दीज आर द एरेज दैट वी हैव। ओके, ये हमारे एरेज है फॉर नाउ।
इसके बाद व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, आई सेड कि आई वांट टू स्टैक द थिंग्स, सो आई सेड numpy डॉट स्टैक, यहाँ पर मैंने स्टैक दिया। और नॉर्मल स्टैक मींस इट मींस हॉरिजॉन्टल स्टैक, इसका मतलब है हमारी हॉरिजॉन्टल स्टैक। जब तक आप एक्सप्लिसिटली नहीं बताओगे कि आप जो स्टैकिंग करना चाह रहे हो किस तरीके से करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, ये आपके अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। सो यहाँ पर आकर स्टैक के अंदर भी आपको सेम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती है। पहली आर्ग्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ द एरेज, आपको यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द एरेज हैंड ओवर करना पड़ेगा। सो आई हैंडेड ओवर एक्स एंड वाई, एंड इफ यू प्रेस शिफ्ट टैब सी, वी स्टिल नीड टू हैंड ओवर द एक्सेस, बट दिस इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड सिंस इट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो हमारे को इसको देना नेसेसरी नहीं है, हमने उसे नहीं दिया। प्रेस द शिफ्ट एंटर, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। अब हमारे लिए जो रिजल्ट आ रहा है, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट कि हमारा वो रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। हमारे लिए जो चीजों को स्टैक करा गया है, दे आर हॉरिजॉन्टली स्टैक, मतलब जैसे हमारे लिए कंकेटिनेट में एक्सेस 0 पे वर्क हो रहा था, सेम फंक्शनलिटी इज गेटिंग ओवर हियर, यहाँ पर भी वही सेम फंक्शनलिटी से हमारी वर्क कर रही है। यू कैन सी दिस इज द एंटायर रो, हमारे लिए एंटायर रो। ऐसे ही हमारे पास आगे दूसरी रो अवेलेबल है, ऐसे ही तीसरी रो अवेलेबल है, एंड सो ऑन। फिर हमारा दूसरा एरिया रखा है यहाँ पर। अगर आप नॉर्मल स्टैक की जगह वी स्टैक यानी कि वर्टिकल स्टैक कर देते हैं यहाँ पर, अभी हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग थी, आप अगर वर्टिकल स्टैकिंग करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो टेल दैट, आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो। और वर्टिकल स्टैक में हमारा स्टैकिंग इसमें जो हमारे लिए परफॉर्म हुई है, इसके अंदर एक्स रोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने यहाँ पर अभी जो हमारी स्टैकिंग हुई है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, लेकिन इफ यू वांट टू मेक इट हॉरिजॉन्टल, सो एक्सिस 1 you will have to hand over, and once I did the axis 1, now you can see the stacking। अब आप यहाँ पर स्टैकिंग देख सकते हो, और स्टैकिंग में आपके लिए देखो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वन रो ऑफ दिस एंड देन वन रो ऑफ दैट, देन अनदर रो ऑफ दिस एंड देन अनदर रो ऑफ दैट, यानी कि हमारे लिए कंकेटिनेशन तो हो रही है, बट स्टैकिंग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, वन अबव वन वर्क करता है। लेट्स से दिस इज वन एरे एंड दिस इज अनदर एरे। इन सारे एरेज के अंदर हमारे पास जो भी स्टफ अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने ये सारा का सारा स्टफ अवेलेबल है। हर एक एरे के अंदर, सपोज ये हमारे एरेज है, उनके अंदर रोज एंड ऑल अवेलेबल है। ये हमारे मल्टीपल एरे हैं, सेम लेंथ के एरे हैं। तो स्टैक के थ्रू आपको स्टैक में डायमेंशन चेंज हो रहा है। नो, स्टैक में डायमेंशन हम बताते हैं और इसके अंदर चेंज हाँ 3D फॉर्म में आपको दे रहा है, लेकिन सी यहाँ पर हमारे लिए स्टैकिंग परफॉर्म किस तरीके से हो रही है। आपने यहाँ पर एक्सेस 1 दिया, इट मीन स्टैकिंग विल हैपन कॉलम वाइज। एंड हाउ द स्टैकिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ, हमारे लिए स्टैक जो बनेगा वो किस तरीके से लिए बनेगा। सबसे पहले हमारा ये वाला हैगा सपोज एक्स कॉलम, जो एक्स एरे है, और ये वाला है हमारा वाई। सिंस आई सेड कि मेरे को यहाँ पर जो स्टैकिंग परफॉर्म करनी है, आप कॉलम वाइज करना चाहते हो, रो वाइज करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप पिक करोगे। सबसे पहले एक्स का एक एलिमेंट आएगा, फिर वाई का एक एलिमेंट आएगा, फिर एक्स का एक एलिमेंट आएगा, फिर वाई का एक एलिमेंट आएगा। मतलब समथिंग लाइक दिस द स्टैकिंग इज गोइंग टू हैपन। और आपको यहाँ पर जो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपको डायमेंशंस भी चेंज होती हुई दिख रही है। जबकि कंकेटिनेशन में आपका एंटायर एरे के एलिमेंट्स या तो रो वाइज इंजेक्ट कर दिए जाते थे या कॉलम वाइज इंजेक्ट कर दिए जाते थे। स्टैकिंग के टाइम पे जैसे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स डाले जाते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको डेफिनेटली पता ही होगा, पाइथन में हमने पढ़ा भी था काफी कुछ स्टैक के बारे में। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो है हमारे को एक नया स्टैक बनाकर दिया। सो सी दैट्स हाउ द स्टैकिंग इज परफॉर्म। नाउ आप या तो एक्सेस बदल लो, या आपके पास यू कैन से एक और फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है वी स्टैक। सो np डॉट वर्टिकल स्टैक, दैट इज वी स्टैक मींस वर्टिकल स्टैकिंग। इसके अंदर भी यू नीड टू हैंड ओवर द कलेक्शन ऑफ द एरेज। सो मैंने यहाँ पर एक्स एंड वाइज को हैंड ओवर कर दिया, दीज आर द एक्स एंड वाइज वी है, हमारे पास एक्स एंड वाइज अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर एक्स एंड वाइज को हैंड ओवर करा, एंड इफ यू प्रेस द शिफ्ट टैब ओवर हियर, सी यू कैन हैंड ओवर द टपल ऑफ द एरेज ऑफ। यहाँ पर रो वाइज वर्टिकल स्टैकिंग होती है, जो हमने एक्सेस बदल के करा ना, जो हमने यहाँ पर एक्सेस चेंज करके करा, दिस वी स्टैक फंक्शन शुड डू दिस सेम टास्क विदाउट गिविंग दोस वैल्यू। मतलब वही सारा स्टफ ना बिना दिए आपको यहाँ पर उसी फॉर्म में मिलता है। ओके, सेम वही टास्क यहाँ पर परफॉर्म हुआ है विदाउट चेंजिंग दी एक्सेस। एक्सेस हमारे को देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारे लिए वर्टिकल स्टैकिंग करता है।
और अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल स्टैकिंग नहीं करना चाहता हूँ तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, यानी कि 0 हैंड ओवर करोगे तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, यानी कि पहला एलिमेंट ऑफ एक्स देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट, देन इसी तरीके से हमारे लिए पूरी ये स्टैकिंग परफॉर्म करवा कर दी गई। ये वाला जो है हमारा एक्चुअली वर्टिकली स्टैक करने के लिए ही बनाए थे इसको। तो सेम वी हैव द एच स्टैक एज वेल। ये जो आप यहाँ पर नॉर्मल स्टैक देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्टैकिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें हम एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं। If you don't want to provide the access explicitly, then the stacking में हमारे पास np dot h stack is a function that is available. ये हमारा एक फंक्शन है that is available inside the numpy, और इसके अंदर भी आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ एरेज। आपको काफी सारे एरेज का कलेक्शन हैंड ओवर करना पड़ेगा। नेम से ही पता लग रहा है इट इज h stack. h stack means horizontal stacking. It is going to perform the horizontal stacking. So इसने हमारे लिए horizontal stacking perform करी। You can see over here. Okay, so let's say we have another array available. Let's say we have an array named x over here available. Let me create the numpy array. So np dot a range, then I said I want to create the array which is starting from the 5 getting till the 11 or something else, whatever you wish to do. And then एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है that is called the split. जैसे लिस्ट के पास स्प्लिट आपके पास अवेलेबल था, ऐसे ही इसमें भी आपके पास स्प्लिट अवेलेबल। So now you can see our array has 6 elements available in it. हमारे array के पास अभी कितने elements हैं? 6 elements available. I want to divide this array into 2 equal sections. मैं इसे 2 equal small arrays में divide कर देना चाहता हूँ. So what you can do over here, आप यहाँ पर use कर सकते हो np.split and then उसके बाद अपना array handover और then you will have to tell the size कि exactly आप indices और sections कितने चाहते हो. You will have to tell that thing. आपको वो चीज बतानी पड़ेगी. So I said I want the 2 equal sections and then I just press shift enter. Now you can say you got the list of 2 arrays. आपको 2 numpy arrays की list मिल रही है देखने को. ऐसे ही अगर आप इसे 3 करते तो ये 3 equal parts में आपके लिए arrays को divide कर दें. Okay, but array must be divisible by the given indices. Okay, the array must be divisible by the given indices. अगर आपने कुछ ऐसा दे रहे हो, array की लेंथ है सपोज 11 समथिंग और you are trying to say कि आप उसको 2 equal sections में divide करना चाहते हो, so that's not gonna happen. ऐसा नहीं होगा. Okay, split हमारे लिए arrays को split करता है. और अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे अवेलेबल हैं, लेट्स से हमारे पास अब जो अवेलेबल एरे है x तो हमारा पहले से ही था, सी ये रहा हमारा x एरे ऊपर हमने बनाया था, मैं उसी को कॉपी करके लेकर जाने वाला हूँ. वेयर इज दैट? हियर वी हैव द x एरे अवेलेबल. कॉपी. दिस इज द x एरे वी हैव. ये हमारा x एरे है जो हमारे पास अवेलेबल है. If I now want to split this array, मैं इस array को split करना चाहता हूँ, it is multi-dimensional array. Then we can say x dot split. I said कि x dot split I want to split the array. Which array I want to split? This. X is by default is set to what? X is by default is set to 0. It means row wise split operation will be performed. So in how many rows you want to, या size बताओगे आप? I said the 2 is the size. Then I pressed enter. NumPy nd array object has no attribute. Sorry, x के अंदर नहीं है, वो NumPy के अंदर. Wait for a second guys. np dot split numpy array के पास नहीं है, वो numpy module के पास available function है. Then I said I want to split the x into 2 common sizes and by default, see now what are we getting? Type error. Why are we getting? Just because the split operation was getting performed line by row wise. And how many rows do we have? We have the 5 rows available. Is 5 divisible by the 2? So array split does not result in the equal division. This array we are going to get. So your array must contain some divisible length. आपके लिए जो एक divisible length उसकी होनी चाहिए. That thing is necessary. Okay, ये चीज आपके लिए necessary है. Keep this thing in your mind. So मैंने यहाँ पर बोल दिया कि we have the 4 elements and then we have available elements जो है हमारा row cross columns we have. So I said column 5 rows are 4. And then this is the x we have now. ये हमारा x जो है this time, this is that. ये हमारा x है which has what? वो हमारे लिए इसके पास अवेलेबल है टोटल कितनी, इसके पास जो टोटल रोज हमारे लिए अवेलेबल है they are 4. If I now perform the split operation onto this array, then it will smoothly work for me. हमारे लिए smoothly work करेगा. Okay.
अगर आप इसमें मैं एक्सेस चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर अभी एक्सेस को चेंज कर देता हूँ तो हमारे लिए फिर से एरर आ जाएगा, क्योंकि कॉलम्स जो है दे आर 5। सो मैंने जब यहाँ पर स्प्लिट करा, आई सेड np डॉट स्प्लिट, एक्स को स्प्लिट करना है, टू इक्वल सेक्शंस में से डिवाइड करना है इसे, एंड एक्सेस जो है हमारा that is 1. Then what are we getting? Again type error. Array split does not result in the equal division. आपको equal division यहाँ पर नहीं मिल रहा है. So keep this thing in your mind. Whenever you are performing the split operation, the array जो भी आपके अंदर length है array की, that must be divisible by the given indices. Given indices से उसे divisible होना चाहिए. So यहाँ पर हमारे को इसलिए array देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे लिए जो length है वो मैच नहीं कर रही, हमारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, सी वन थिंग आई डिड ओवर हियर, चॉप दिस, सो वी वांट दी 24 एलिमेंट कलेक्शन और उसको मैंने 4 क्रॉस 6 में डिवाइड कर दिया। सो दिस विल बी आर एरे इन दिस टाइम, ये अब हमारा एरे है जो 4 क्रॉस 6 का है। अगर मैंने यहाँ पर उसको नॉर्मली इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी सी तो ये हमारे लिए सक्सेसफुली डिवाइड हो चुका है। And then I said axis is 1 that I want to perform the divide. So now you can see 3 columns हमारे divide होकर हमारे को मिल चुके हैं। Now ये split function जो है इसके दो individuals भी आपके पास available है। You know that आपके पास एक H split available है, that is horizontal split. आपके पास एक V split available है, that is vertical split, which is equivalent, which is just equals to the axis you provide. Let's say यहाँ पर अभी मैंने axis दे दिया तो ये हमारा horizontal है, अगर मैं इसमें एक्सेस नहीं देता हूं तो ये हमारा वर्टिकल स्प्लिट, ओके। तो लेकिन फिर भी np डॉट v स्प्लिट वर्टिकल स्प्लिट आई सेड, एंड देन इसके अंदर मैंने हैंड ओवर करा द x एंड देन जस्ट प्रेस द एंटर, सॉरी वी नीड टू हैंड ओवर वन मोर थिंग, द साइज। सो आई सेड द साइज इज गोना बी 2. So now see what you are getting, and then you have np dot h split as well, horizontal split, that is you need to hand over the array and then you need to tell the size indices. So see, this is splitting the things horizontally out, ये हमारे लिए horizontally things को split out कर रहा है. So now let's move forward and talk about the other manipulation methods that we have. Suppose you have a numpy array available and in that numpy array you want to just add various elements in a one hit. आप एक सिंगल एग्जीक्यूशन में वेरियस एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो. सो append, if you remember append, what does append means exactly? Adding something to the end of a collection. एक कलेक्शन के एंड में अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो इट मींस append. अब हमारे पास ये x अवेलेबल, दिस इज द x वी हैव, लेकिन ये एक 1D एरे तो नहीं है. 1D के अंदर तो append करना देखो बहुत ज्यादा इजी है, हमें 1D के रिगार्डिंग पता ही नहीं है. वी हैव np dot append function available, okay, in which you need to hand over the array, and after handing over the array you need to hand over the various things that you want to insert. Let's say मेरे को यहाँ पर एक पूरी नई रो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर एक रो कलेक्शन ऑफ रो, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे तो मल्टी डायमेंशन काइंड ऑफ स्टफ दूंगा इसमें. सो मैंने यहाँ पर लेट्स से 10 20 30 40 50 एंड 60 सेम नंबर्स मैच करते हुए एक कलेक्शन को हैंड ओवर कर दिया. And I said I want to insert this thing on the axis 0. So by default axis is set to what? None. So you will have to hand over the axis. But it has the default value, so it is not forced on you to provide the value for this axis. आप चाहो तो ना भी दो वैल्यू, तो भी आपको कुछ एरर एंड ऑल अगर होगा तो ये जनरेट करके दे देगा, लेकिन नहीं, इसने एरर जनरेट नहीं करके दिया. एग्जैक्टली हमारे को उस एरे का फ्लैटन करा सबसे पहले इसने, और उसके बाद फाइनली आपको एक 1D एरे ही बना कर दे. लेकिन सपोज यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन सम एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, उसमें एक रो ऐड करना चाहते थे ना, तो आप रो को ऐड करने के लिए क्या करोगे? यू विल यूज द append, एंड append में यू विल हैव टू हैंड ओवर द एरे, एंड देन आफ्टर हैंडिंग ओवर द एरे वी हैव 10 20 30 40 50 60, these are the elements we have, and then मैंने बोल दिया यहाँ पर the axis is equals to 0. Let's say this is the axis on which I want to append the things. Now you can see the entire row have been appended. Okay, आपको column axis पे चीजों को append कराना हो, then np dot append you have, and append के अंदर you need to hand over the array in which you want to append the things, and then you will have to hand over the values.
and in those values actually I'm handing over some list comprehension. So मैं लिख कर नहीं देना चाहता, सपोज मैं और इसमें 10 कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ या 5 कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ. So I said कि A for A in range, let's say 1, 2, 3, 4, 5 elements we have. So we have the 5 elements, and for B in range, let's say I want to add the 5. And किस एक्सिस पे मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ? I want to add these things on the axis 1. 1 means column axis पे I want to add the things. So value error we got, what we got, all input array dimensions for the concatenation axis must match exactly, but along dimension 0, the array at index 0 has size 4. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, or I gave here over here 4. So this was the issue. Size mismatch nahi ho sakta, guys. Keep this thing in your mind. And still we are getting some error. Why are we getting some error? This was the error. Okay. So okay, wait. See, yeah, that's fine. That's absolutely fine. Because index error है हमारा. देखते हैं क्या इशू है, क्या एरर है, एक बार इसको स्टडी करते हैं. ऑल द डायमेंशन इन दी एरर. यस, हमारे पास ये 4 ही तो है और 4 साइज के ही हमने यहाँ पर हैंड ओवर करेंगे. या नाउ इट विल वर्क फाइन. सी, जो भी एलिमेंट्स मैंने अदर दिए वो ये रहे हमारे एलिमेंट्स जो हमारे लिए अब एक्सिस 1 पे ऐड हो चुके हैं. जो हमारे लिए कहाँ ऐड हो चुके हैं? ऑन टू दी एक्सिस 1. ये एलिमेंट्स हमारे एक्सिस 1 पे ऐड हो चुके हैं. इस तरीके से आप चाहो तो मतलब मल्टीपल एक्सेस पे अपनी तरफ से चीज़ों को अपेंड करा सकते. मल्टीपल एक्सेस पे आप अपनी तरफ से चीज़ों को अपेंड करा सकते. जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर एक यूटिलिटी फंक्शन या यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल थी, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज द इंसर्ट, जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट को ऐड कर पाते थे, पुट कर पाते थे. वैसे इसके अंदर भी हमारे पास एक यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल. दिस इज द एक्स वी हैव. अब एक्स हमारा पहले जैसा ही है. हमारे को जो भी चेंजेस होकर मिल रहे हैं वो एक नया एरे बन के मिल रहा है. हमारे एक्चुअल एरे के अंदर कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं करे जा रहे. एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे को क्या बन के मिल रहा है? एक न्यू एरे बन के मिल रहा है. कीप दिस थिंग इन योर. इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, x डॉट सॉरी नॉट np डॉट इंसर्ट. इस एरे के अंदर इफ यू वांट टू इंसर्ट सम वैल्यू, मैं इस एरे के अंदर मेरे को कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेट्स से 15,000. कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है? सिंस इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, तो यू विल हैव टू हैंड ओवर द इंडेक्स. आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी. कौन से इंडेक्स पे आपको x मतलब वैल्यू को असाइन करवाना. So I said I want to assign the values onto the, you know that very well कि मल्टी डायमेंशनल एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है. So उसकी रिस्पेक्ट में ही इंडेक्सिंग होगी. मैं वैल्यू को सपोज इस लोकेशन पे असाइन कराना चाहता हूँ. So इस लोकेशन का इंडेक्स क्या है? If you pick the row 0, 1 and 2. So row is 2 and column is 2 as well. So 2, 2 I gave over here, and then you need to hand over the axis. Axis is by default what? It is by default set to none. So if you do not provide, then you know very well flatten array or index error we are getting. Why are we getting? Okay, index is out of bound. Okay, sorry. So what are we getting? यहाँ पर हमारे को जो हमने यहाँ पर स्टफ हैंड ओवर करा है, this is the index. ये हमारी इंडेक्स है. मैंने गलती से सिंटैक्स मिस्टेक कर दी कि हमारे को एग्जैक्टली इस इंडेक्स पे इन वैल्यूज को ऐड ऑन करना है. ऑल हमारे को ये चीज बतानी होती है. तो लेट्स से मैंने बोल दिया कि 2 इंडेक्स पे, और क्योंकि हमारा एक्सिस हम बताएंगे, 2 इंडेक्स मतलब रो पे, एक्सिस मैंने यहाँ पर बता रखा है. मेरे को किस वैल्यू को ऐड करना है एग्जैक्टली पूरी खुद से एक इंसर्ट कराना चाहता हूँ मैं. रो मेरे को 6 एलिमेंट की ही देनी पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पर 6 एलिमेंट की एक रो दे दी कि मैं इस रो को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ onto this index. मैं इस इंडेक्स पे इसे इंसर्ट कराना चाहता हूँ. एक्सिस क्या है हमारा? I said axis is 0. Then I again run the stuff out. Now you can see onto the 2 index which thing we are getting over here. हमारी जो भी गिवन लिस्ट थी हमारे को, या गिवन जो भी हमारा स्टफ था वो हमारे लिए इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया पे इंसर्ट करवा दिया, और बाकी जितना भी स्टफ था हमारे लिए वो आगे बढ़ गया, जैसे कि लिस्ट के अंदर होता था. यू कैन सी समथिंग लाइक दैट इज की रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए होने वाली. ऐसे ही आप किसी भी एक्सिस पे सपोज इन बिटवीन सम कॉलम यू वांट टू ऐड समथिंग, आप किसी कॉलम के बीच में करना चाहते हो तो np डॉट
insert. See, first of all the array, second one is the index argument, so accordingly like लिख देता हूँ. First one is the array, जिस array के अंदर changes करना चाहते हैं. Second one is the index, कि किस index पे डालना चाहते हो. I said on the third index. Second one is the index, and fourth one is the value that you want to inject. So यहाँ पर value के तौर पे मैंने दे दिया एक column of 5 element ही मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा. So I gave the 10, then 20, then 30, 40, 50, 40. Okay, so 5 elements का column ही मैंने यहाँ पर दे दिया. तो ये है हमारा क्या exactly, ये है हमारा value which you want to insert, and last thing is the axis, on which axis you want to insert the things. I said one axis. If you now press enter, what are we getting? Value error, could not broadcast input array shape 5 cross 1 into 4. Sorry, 4 elements का है हमारा. I forgot exactly. Sorry. Yeah, now it's working well. ये मैंने इसकी रिस्पेक्ट में 5 लिख लिया था, लेकिन ये एग्जैक्टली हमारा x जो था वो 4 का ही है, क्योंकि हमारे x के अंदर चेंजेस तो हुए नहीं. तो अब हमारे लिए जो भी थर्ड इंडेक्स था उस पर हमारा कॉलम आ चुका है. यही काम अगर मैं आपको लिस्ट में, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में करने को दूं तो बहुत ज़्यादा लेंथी कोड यू विल हैव टू राइट. आपको बहुत ज़्यादा लेंथी कोड आपको लिखना पड़ जाएगा. ओके, अब बात करते हैं डिलीट करने की. इंसर्ट तो हमारे को करना आता है. हाउ वी कैन डिलीट समथिंग फ्रॉम द numpy array. So np dot delete is the function. ये हमारा फंक्शन है जिसमें you need to hand over the array. You need to tell the index कि which index element you want to remove. You said कि you want to remove the, let's say, 0th index element. Which axis you want to remove? Just since it is multi-dimensional, if it is one-dimensional, then no axis is required at all. आपके लिए अगर one-dimensional array आप दे रहे हो तो उसमें axis required नहीं है, लेकिन इस केस में आपको देना पड़ेगा. If I said 0, an axis is equals to 0 as well, यानी कि अगेन 0th इंडेक्स इसमें से 0th एक्सेस यानी रो 0th जो है हमारी वो रिमूव कर दी जाएगी. सो हमारे लिए जो भी 0th रो थी वो हटाकर हमारे को स्टॉप होगी. If I repeat this same thing np.delete and then I said x मेरे को रिमूव करना है one इंडेक्स का, but axis is what? Axis is column axis, यानी कि मैं इस एक्सिस पे से ही पूरा कॉलम हटाना चाहता हूँ. एंटायर कॉलम विल बी रिमूव. यहाँ पर देख लो जो हमारा 1 वाला कॉलम था, that entire column has been removed from here. Okay, that entire column has been removed from here. If you want to grab the all unique elements from the numpy array, then you have a function available named unique, and in there you can hand over your numpy array. I just handed over the x. Now I will get all the unique elements in the 1D array form. Okay, I will get all the unique elements in the 1D array form. Let's create the duplicate element stuff over here first of all, then we will check if it's then np linspace. I said मुझे 1 से 10 के बीच में 20 टर्म्स चाहिए, और जो हमारा d टाइप है that is integer 2 byte यानी 16 bits. Okay, and then we just press shift enter, x को access कर दो. Then definitely we are having some duplicacy over here. I want to get the unique element out of it, np.unique, or you can convert this stuff into the set also. जो set करता था वो काम हमारे लिए unique कर लेगा. np का जो हमारा x था वो हमने hand over करा, so we are getting only what? Unique elements. See, we can demand for actually many things. See, now it is returning us what? The unique elements. Which are the unique elements? We can also tell our unique function to get us the frequency of each element. हम अगर sorry, अगर हम चाहें तो frequency of each element की डिमांड भी कर सकते हैं. How will we do that? np dot unique again, हम again unique बोलेंगे और अपना x ही हैंड ओवर कर देंगे. फिर यहाँ पर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. सी रिटर्न इंडेक्स. इफ यू वांट टू गेट द इंडेक्स देन यू कैन से रिटर्न इंडेक्स इक्वल्स टू 2. अब आपको जो ये यूनिक एलिमेंट्स की इंडेक्स देगा, यहाँ पर इसने आपको जो दे रखी है वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स की इंडेक्स दी है. जो पहला यूनिक 1 है वो 0th पे है, जो 2 है वो 3rd पे है, जो 3 है वो 5 पे है, जो 4 है वो 7th पे है, एंड सो ऑन. हमारे को यहाँ पर इसने इंडेक्स रिटर्न करी.
ऐसे ही आप np.unique को कॉल करके आप उससे और भी बहुत सारी चीजों की डिमांड कर सकते हो। लेट्स से मैंने बोला यूनिक, इस एक्स के अंदर से इस पे शिफ्ट टैब दबाओगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अगर देखोगे, रिटर्न इनवर्स, रिटर्न काउंट्स, एक्सेस भी बता सकते हो कि किस एक्सेस पे यू वांट टू फाइंड द थिंग्स आउट, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे इफ यू आर हेडिंग ओवर। सो यहाँ पर मैंने अगर बोल दिया कि रिटर्न काउंट्स गेट मी द फ्रीक्वेंसी, इट मींस, सो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिया लेट्स से एक्स एंड रिटर्न counts equals to 2. Now what it is returning us, 1 exists 3 times, then 2 2 2, and then 10 is 1 time. So ये हमारे को हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट डज दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इन आवर एरे। हमारे जो एरे है उसके अंदर कितने टाइम्स हमारा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, कि हमारे को ये रिटर्न कर रहा है। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू स्मॉल क्वेश्चंस। Find all the elements between range given by user in an array. So आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरे जनरेट करवा दें, then user से you need to have the two values and then you need to find all the elements given या all the elements from that array जो भी यूजर ने रेंज दी है उस रेंज के बीच के सारे एलिमेंट्स आपको यूजर को देने। ओके, उसके बीच के सारे एलिमेंट्स आपको यूजर को देने हैं। एक टास्क तो आपको ये करना है, सिंपल सा स्मॉल सा टास्क है। ओके, सो यही सिंपल सा इंडेक्सिंग एंड ऑल यूज होगा इसमें, और कुछ ज़्यादा स्टफ नहीं होगा। सो इसी सारे स्टफ को यूज करके देखना है, जितनी भी फंक्शनैलिटी अभी हमने पढ़ी है इन सारे फंक्शनैलिटीज एंड ऑल को यूज करके देखना। मैं एक नया सेल ले रहा हूँ और उसमें सारा स्टफ अपना है। नाउ लेट्स से वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन numpy array। numpy array आप जानते हो, array इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो भी सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द array। जब अब बात करते हैं हम वर्किंग विद strings in numpy array, and not exactly only with these strings, आप date time ऐसी काफी सारी यूटिलिटीज है जिनके साथ आप numpy के अंदर काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास एक numpy array अवेलेबल है ऑफ वेरियस वर्ड्स और अल्फाबेट्स लेट्स से, तो आप उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। वो बहुत सारे ऑपरेशंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं और इसे देखते हैं। तो चलो, सपोज हमारे पास एक numpy array अवेलेबल है x and that x is equals to some numpy array x, let's say np.array, और ये array मैंने बनाया of 2 or more strings। let's say यहाँ पर हमारे पास काफी सारे स्ट्रिंग्स एंड ऑल यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, ये हमारा numpy array। इसके बाद we do have another numpy array available, let's say np.array, let's say हमारे पास 3 एलिमेंट का array है, so list a b c। ओके, 3 एलिमेंट का ये दूसरा array हमारे पास है। if I show you these array x and y, sorry lower case they are x and y, you can see these are the arrays। हमारे पास ये arrays अवेलेबल। अब इन arrays पे मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, एंड एग्जैक्टली एडिशन, स्ट्रिंग के अंदर एडिशन का मतलब क्या होता है, कंकेटिनेशन। इन स्ट्रिंग एडिशन मींस कंकेटिनेशन। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा np.char यानी कि कैरेक्टर रिलेटेड ऑपरेशंस है, उसके बाद ऐड इट इज अ फंक्शन ओवर देयर, वहाँ पर हमारे पास ऐड फंक्शन अवेलेबल है इन विच यू कैन हैंड ओवर द array 1 array 2, दो array आप यहाँ पर हैंड ओवर कर सकते हो। सो मैंने x एंड y को हैंड ओवर कर दिया ओवर हियर, और x and y को हैंड ओवर करने के बाद नाउ यू कैन सी each element of the x is concatenated with the each element of y। so Krishna A, Hare B and Rama C भी है हमारे पास।
ये सारे एलिमेंट्स इन्होंने ऐड करके दिए। इफ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल यूटिलिटी मेथड सपोर्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसे बिहेव करती थी पाइथन के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है सपोज कृष्णा एंड देन आई सेड रिजल्ट इनटू 2, व्हाट विल इट रिजल्ट एज Krishna 2 times. Why? Just because you know that already कि multiplication operator is overridden in the string class to multiply the string. हमारे लिए string को multiply करने के लिए ये overridden है हमारे लिए string class का, इसीलिए इस तरीके से behave कर रहा है, सिंपल सी बात है। So ऐसे ही और भी बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस मेथड्स एंड ऑल हमारे लिए, जितने भी स्ट्रिंग के पास यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी। इफ यू रिमेंबर आज तक सबसे ज्यादा यूटिलिटी मेथड सपोर्ट वाली जो चीज हमने पढ़ी थी वो स्ट्रिंग ही थी। उसके ऊपर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा था उसके बारे में, हमने उसके बारे में न जाने क्या क्या पढ़ा था। ऐसे ही वो सारे ऑपरेशंस जो वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल थे, वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उन सारे ऑपरेशंस को आप यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे? लेट्स से मेरे को ये सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, सो वी कैन डू दैट, हम वो कर सकते हैं। मैंने बोल दिया np.char.multiply, मैं मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो मैंने मल्टीप्लाई करा, मैंने बोल दिया कि ये हमारा एरे है और इसके हर एक एलिमेंट को डबल कर। सो मैंने जब शिफ्ट एंटर दबाया, सो यू कैन सी व्हाट आर वी गेटिंग, एन एरे दैट इज कंटेनिंग द मल्टीपल ऑफ ईच एंड एवरी सिंबल। ये हमारा x है और इसको मल्टीप्लाई कर दो लेट्स से 3। सो व्हाट आर वी गेटिंग? एरर। व्हाई? जस्ट बिकॉज जो ब्रॉडकास्टिंग या जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो न्यूमेरिकल्स के साथ वर्क करने के लिए ओवररिडन है। अगर आपको स्ट्रिंग के साथ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं तो आप स्ट्रिंग के साथ आपको खुद से करवाने पड़ेंगे, लेकिन स्टिल यू वांट टू डू दिस सेम थिंग, तो आप चाहो तो अपने लिए ये खुद से भी कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? numpy क्लास को सब क्लास करके। अगर आपको याद हो कि numpy क्लास हमने oops वगैरह अच्छे से पढ़ी थी, तो जब भी हम किसी फंक्शनलिटी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, तो हम उसमें खुद की फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। लेट्स से my np बोल दिया मैंने इसे, my np, इट इज my np क्लास, और इसके अंदर मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म करा विद द numpy.array क्लास। एग्जैक्टली व्हाट इट इज पहले देख लेते हैं। np.array है क्या हमारे लिए? np.array जो है वो है क्या एग्जैक्टली हमारे लिए? फंक्शन ऑफ numpy array। इट इज फंक्शन नॉट क्लास एग्जैक्टली। सो क्लास को अगर हमारे को देखना है, क्योंकि हम इनहेरिटेंस तो क्लास के साथ परफॉर्म कर सकते हैं ना, so do we have some array attribute? No, we don't have any array attribute available in here. So अगर हमारे को देखना है तो just हम np dot लिखेंगे and shift tab we will press and then we will find the documentation, install location and all, हमारे को सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। documentation is available over where, scipy पे दे रखी है import numpy। सब क्लास भी हम कर सकते हैं, बस एक बार हमारे को numpy क्लास का नाम पता लग जाए जिससे array वगैरह हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलो इसे रिमूव करता हूँ। एक numpy क्लास ऑब्जेक्ट तो हमने बना ही रखा है। सो मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ x पूछा, व्हाट आर गेटिंग? nd array, numpy dot nd array, that is the class item। सो मैं numpy dot nd array, np dot nd array मैंने यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करी। सो ये हमारे लिए एग्जैक्टली आई थिंक इट इज अ क्लास। सो इसके साथ इनहेरिटेंस परफॉर्म मैं कर लूंगा, नो इशू। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, टाइप ऑफ x के साथ मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म कर लिया। यहाँ पर इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के बाद जो भी स्टफ था, सबसे पहला काम अगर आपको याद हो, कंस्ट्रक्टर चेंजिंग इज मस्ट, तो मैंने इनिट यहाँ पर यूज करा और जितनी भी चीजें मेरे को यहाँ पर मिली थी वो मैंने पेरेंट को हैंड ओवर कर दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, सबसे पहले सेल्फ हमारे को मिला, आर्क्स मैंने यहाँ पर लिया और मैंने क्वार्क्स भी यहाँ पर ले लिया। आर्क्स एंड क्वार्क्स मिल गया। सुपर को वो सब कुछ हैंड ओवर करना हमारे लिए नेसेसरी है, सो हमने सुपर को वो सारा स्टफ हैंड ओवर कर दिया। ओके, सो आर्क्स को हैंड ओवर कर दिया एंड क्वार्क्स को भी हैंड ओवर कर दिया। ओके, आर्क्स को भी हैंड ओवर कर दिया एंड क्वार्क्स को भी हैंड ओवर कर दिया। दोनों स्टफ मैंने आगे हैंड ओवर कर दिए हैं। So, दोनों चीजें सिंस हमारी आगे जा चुकी है। फिर स्पेशल मेथड जो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर MUL अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको हमारी दो चीजें मिलती है, सेल्फ और दूसरी चीज क्या मिलती है, वैल्यू। सेल्फ एंड दी वैल्यू, ये दो चीजें इसे मिलती है। ये हमारे लिए करेगा क्या इंटरनली, ये इंटरनली हमारे लिए रिटर्न करेगा np डॉट
कैर डॉट मल्टीप्लाई करके जो हमारे को मिलता है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे को मिलता है, वही सेम स्टफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दे दिया कि मुझे ये जो हमारा सेल्फ है ये होगा हमारा एरे, और इसके आगे हैंडओवर कर दिया जाएगा हमारी वैल्यू, वो होगा वो इंटीजर जिसके साथ हमने यहाँ पर वर्क किया। शिफ्ट एंटर दबाया, क्लास हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैंने माई एनपी से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपना, सो मैंने ARR बनाया इक्वल्स टू माई एनपी, माई नंपाई क्लास यानी कि, और इसके अंदर मैंने अपना एरे हैंडओवर कर दिया कि ये रही हमारी एरे जो है, एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर हैंडओवर कर दिया। लेट्स से लिस्ट ऑफ ए वी हैव ABC, हमारे पास ABC की लिस्ट हैंड ओवर कर दी। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, इट इज सेइंग कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। नंपाई के अंदर हम जो एरे बना रहे थे, जब हमने स्ट्रिंग एरे बनाया था तो हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही हैंड ओवर करे थे, लेकिन एरे फंक्शन की हेल्प से बनाया था हमने। लेकिन यहाँ पर अब जो इसने इंटरनली इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, ये हमारा np एरे फंक्शन यूज नहीं हो रहा है यहाँ। सिंस ये np एरे फंक्शन यूज नहीं हो रहा है तो हमारे को इसके अंदर और थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन एंड ऑल परफॉर्म करनी पड़ेगी, और वो जो ऑल्ट्रेशन है हमारे को जो यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं स्ट्रिंग एरे यहाँ पर हमारे को बनाने नहीं दे रहा। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेटर्स वगैरह को ओवरलोड कर सकते हो, और एग्जैक्टली अब हमारे लिए ऑपरेटर्स को ओवरलोड तो इसने कर दिया है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रिंग एरे ऐसे बना नहीं पा रहा है। हम एनडी एरे क्लास को यूज करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, आपको एरे फंक्शन को यूज करना पड़ता है, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर पाते हैं, उससे पहले हम यूज नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है हमारे को पहले जाकर इसका कोड पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके साथ प्रॉपरली सब क्लासिंग परफॉर्म कर पाएंगे। उससे पहले सब क्लासिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हमारे को ये मल्टीप्लाई खुद से यूज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर करना ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखूँ कि मेरा एरे, क्योंकि एक स्ट्रिंग एरे है तो हमारे लिए जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है वो उसके साथ भी इस तरीके से परफॉर्म हो सके, लेकिन एग्जैक्टली इट विल नॉट बी परफॉर्म्ड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हमारे को उस नंपाई क्लास के अंदर क्या फंक्शनलिटी है वो सारा कोड जाकर पढ़ना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही और भी ऑपरेशंस में सारे स्टफ को कमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप सब क्लास कर सकते हो, इसी तरीके से होगा। ओके, सो मैं सारे स्टफ को कमेंट आउट कर रहा हूँ। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग की और यूटिलिटी मेथड्स। सपोज हमारे पास एक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, इस एक्स के अंदर काफी सारा स्टफ अवेलेबल है हमारे पास, ये एरे क्लास ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन अगर याद हो आपको, हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर काफी सारी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी, हमारे पास केस चेंज करने के थे, हमारे पास पैडिंग के थे, रिप्लेसमेंट के थे, बहुत सारी स्टफ हमारे पास अवेलेबल। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया लेट्स से कि np.array और नॉट एरे एक्चुअली कैर डॉट, यहाँ पर हमारे पास फिर अवेलेबल था पैडिंग के लिए सेंटर था, एलजस्ट था, आरजस्ट था, अगर आपको याद हो। मैंने अपना हैंड ओवर करा, मैंने बोला 20 या 50 अल्फाबेट्स फिल कर दो, और फिल कैरेक्टर जो हमारे को यूज करना है फिल कैर, उसको मैंने बोल दिया वो होगा हमारा स्टार का सिंबल। शिफ्ट एंटर दबाया, हर एक एलिमेंट के अंदर हमारे लिए अब देख लो क्या हो रखा है। तो जितने भी स्ट्रिंग की यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी ना गाइस, चाहे वो कैपिटलाइज हो, टाइटल केस हो, लोअर केस हो, अपर केस हो, ये सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इसके अंदर। किसके बाद है हमारे पास वो नंपाई कैर डॉट टैब दबा, सिर्फ और सिर्फ कैर डॉट लिखने के बाद टैब दबा दो, इसके बाद ही आपके लिए कुछ चीज़ों को लोड करेगा। अगर नहीं भी करता है तो शिफ्ट टैब दबा लो, आप यहाँ पर मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, या स्ट्रिंग की जितनी भी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्ट्रिंग की जितनी भी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी हमारे पास, इसमें एक अवेलेबल था ट्रांसलेट, डू वी हैव और नॉट, पहले हम ये देखें, सी व्हाट वी हैव ट्रांसलेट, फिर हमारे को टेबल देनी है एंड डिलीट कैश, बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू नल। सो यहाँ पर हम ट्रांसलेट को भी यूज कर सकते हैं। so, मैंने ट्रांसलेट यूज करा, एंक्रिप्शन अगर आपको याद हो स्ट्रिंग के अंदर जो हम एंक्रिप्शन परफॉर्म करते थे, तो मैंने ट्रांसलेट, ये रहा हमारा एरे, इस एरे के अंदर मैंने str.makeTrans के थ्रू, थोड़ा सा बड़ा होएगा एक कोड तो अलग अलग लाइन में लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एरे ऑफ स्ट्रिंग, इसके बाद str.makeTrans की हेल्प से मैंने यहाँ पर एंक्रिप्शन पैटर्न बनाया अपना। ये रहा हमारा एंक्रिप्शन पैटर्न की जो भी हमारे ये अल्फाबेट्स हैं,
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इनकी जगह मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, okay, and then 17 18 19 20 21 22 23 24, sorry, 23 24 25 26, okay, so 25 and 26 total alphabets मैंने यहाँ पर हैंड ओवर कर दिए सारे के सारे, एंड देन आई जस्ट प्रेस शिफ्ट एंटर। नाउ यू कैन से इसने हमारी जो स्ट्रिंग लिखी हुई थी उसके अंदर क्या परफॉर्म करिए, हमारी स्ट्रिंग को इसने एनक्रिप्ट कर दिया। ये हमारा एनक्रिप्टेड पैटर्न, मतलब एनक्रिप्शन परफॉर्म करिए हमारे एरे के अंदर अवेलेबल हर एक स्ट्रिंग के साथ। स्प्लिट करना चाहते हो स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि स्ट्रिंग की जितनी भी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट थी ना गाइस, वो पूरी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट जो है आपके पास np.char के बाद अवेलेबल है, जिसमें आप जो पूरी की पूरी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट को आप किसके साथ यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग के एरेस के साथ। सो सी वी हैव दिस एरे, हमारे पास ये n कैरी अवेलेबल है, लेट्स से n कैस, ये हमारा एनक्रिप्टेड x है। आपको मुझे कोड हैंड ओवर करना है इस एनक्रिप्टेड x को डिक्रिप्ट करने के लिए, यू हैव 5 मिनट्स फॉर दैट। आपके पास ये जो n का x है, मुझे कोड बताओ मैं इसको डिक्रिप्ट कैसे करूं, इसको रीडेबल कैसे बनाऊंगा बस पहले की तरह। Get me the code, you have 5 minutes, right now it is 43, I'll tell you the answer, exact 48. Char.translate, if you remember, np.char.translate, and in there x will become the nx, जो हमारा encrypted x है, this is the thing we have, and the pattern will be reverse of the given, जो हमारा ऊपर गिवन है इसका रिवर्स वर्जन विल बी आवर पैटर्न। सो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इधर आकर पेस्ट कर दिया, थिंग्स को पेस्टेड आउट ओवर हियर, एंड देन ये जो चीज है हमारी, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ओवर हियर, इसे यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ रखा, दैट्स इट। ये हमारा कोड होगा इसको डिक्रिप्ट करने का, अगेन इट विल बी रीडेबल देन, ओके, नाउ इट इज रीडेबल, इट इज प्योरली रीडेबल। स्ट्रिंग की जितनी भी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट है इस तरीके से उसे यूज करके देखना, क्योंकि आपने स्ट्रिंग की यूटिलिटी मेथड सपोर्ट को ऑलरेडी यूज करा हुआ। इसके पास और भी फ्लैग्स होंगे, जितने भी ट्रांसलेट वगैरह हैं अब हमारे पास, इनके पास और भी फ्लैग्स अवेलेबल होंगे, तो उन फ्लैग्स के बारे में भी देखना। लेट्स से मैंने यहाँ पर आकर शिफ्ट टैब प्रेस करा, सो डिलीट कैट्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, करता क्या है हमारे लिए यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर्ली बताया रखा है। सो स्ट्रिंग की जितनी भी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट है, आपका टास्क है ये, आपको उस पूरी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट को यूज करके मेरे को एक जुपिटर नोटबुक बनाकर देनी है, जिसमें स्ट्रिंग की हर यूटिलिटी मेथड सपोर्ट यूज हो रखी होगी आपके एरे के साथ। ओके, तो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।